Okay, now see this question number 17. Uh, shall we start? Is everybody there? Am I Yes, ma'am. audible? Yes, ma'am. Okay. 17th question. Look at this question now. Given the following information, only two things are given and five things are asked from you. What is given is fixed expenses 40,000, means fixed cost is given 40,000, and BEP in rupees is given. BEP in rupees is given 10,000. What they are asking you, PV ratio, profit when sales are 20,000, required sales की formula लगाकर हम profit निकाल सकते हैं. BEP means new BEP when selling price is reduced by 20%. And last is sales to earn, sales in rupees to earn a profit of 4,000 after reducing the selling price by 20%. Okay, shall we start? See, it's very simple. Now what you have to do is, first of all, you have to calculate PV ratio. So what information is given? Contribution upon sales into 100? No. So what information is given? For PV ratio, I am not able to apply PV ratio now because contribution and sales both are not available. So what can I do? BP is available. So let's apply BP formula. So what is the formula of BP? Fixed cost upon PV Fixed cost ratio. is Yes. And BP is already given. See, 10,000 BP. So you'll put this 10,000 here, and fixed cost is always, fixed cost is also given 40,000 divided by PV ratio is question mark. So if I cross multiply, so PV ratio will go here and 10,000 will come down. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. So what we will do is 40,000 divided by 10,000 is PV ratio 4. 4%. So we have got, yeah, 4 percentage. So we have got PV ratio as 4 percentage, 4. Okay. Now, just a minute. Huh? Okay. Okay. Now what they have asked? Profit when sales are 20,000 rupees. This is the formula of required sales. When sales are 20,000, fixed cost is already given 40,000, and PV ratio, we have found out PV ratio as 4. Okay, so accordingly we can find out now. Yes, accordingly we can find out. So apply the formula. चलो मेरे साथ साथ कर दो तो आपका भी होता जाएगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा. लिखो सबसे पहला बीईपी. नंबर 1 बीईपी. फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. नाउ बीईपी इज 10,000, fixed cost is 40,000, PV ratio is question mark. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालो. So what is the answer? Yes, what is the answer? Ma'am, 4 na. 4. Very good. 4. 4 मीन्स अभी ये 4 है, पर अभी आप 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटू 100 कर दो. वैसे ये नंबर है 4. हाँ, इट इज नंबर, इट इज नॉट परसेंटेज. अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इसको इंटू 100 करो तो कितना आएगा? 4 इंटू 100 इज 400 परसेंटेज. तो आप ऑब्लिक स्लैश देकर लिखो, स्लैश 400 परसेंटेज, स्लैश 400 परसेंटेज. ओके, नेक्स्ट. अभी उन्होंने क्या पूछा? प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 रुपीज. अभी ये मुझे करके दिखाना पड़ेगा आपको. ये देखो, इसीलिए मैंने बोला मेरे साथ लिखो.
तो सो दैट आप भी ये नेक्स्ट भी आप सॉल्व कर सको. दिस इज सम नंबर. कौन सा सम स्टार्ट किया हमने? 17. 17. या अच्छा, इसमें फर्स्ट आपने जो कैलकुलेट किया बीईपी की फॉर्मूला लगाकर पीवी रेशियो निकाला ना. सो पीवी रेशियो आपको कैसे लिखना है? 4 और यू कैन राइट 400%. अब आपको सेकंड चीज क्या निकालनी है? रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है. रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ओके, नाउ टेल मी रिक्वायर्ड सेल्स दिए हुए ये देखो, सम पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, समझेगा. प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000, तो सेल्स कितना है? 20,000 गिवन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो गिवन 40,000. ओके, प्लस डीपी इज नॉट गिवन, whole divided by 400 percentage. If you want to take 4, then only 4, no percentage, nothing. But if you want to take it in the form of percentage, as we always do it, so you have to take 400 percentage. Now you tell me 20,000 will be written same. This divided by 400, if this goes into the opposite direction of equals to sign, what will happen then? Divide will be converted into multiplication. So to 20,000 into 400 percentage is equals to 40,000 same plus DP same. Now tell me 20,000 into 400 percentage. 80,000. Very good. 80,000. 80,000 is equals to 40,000 plus DP same. Now if this 40,000 plus 40,000 goes here with 80,000, so what will happen? Plus will be converted into Minus. minus 40,000. Very good. So this will 80 minus 40 is equals to DP. Therefore next line, so DP, therefore DP is equals to, therefore DP is equals to rupees 40,000, because required sales was given in the question and therefore DP was asked, and our answer of DP is 40,000 rupees. Is it clear everybody how to solve? Yes, ma'am. Okay. Next, what is asked? When find out the BP when selling price is reduced by 20 percentage. Now selling price is not given. Selling price is not given, but we can find out new PV ratio. How to find out new PV ratio? Can somebody help me out? Hmm? Tell me. मैम जो पीवी रेशियो दिया है उसका हम लोगों को ये रिड्यूस करना है ना. 20% निकालेंगे. जैसे देखो मैम पीवी रेशियो दिया है 400%, तो उसका 20% निकाल के उससे माइनस करेंगे तो फिर हमारा न्यू पीवी रेशियो. नहीं, उसने क्या बोला है? सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करो 20% से. आप पीवी रेशियो को रिड्यूस कर रहे हो बच्चा. आप अरे हाँ मैम. हाँ, उसने बोला है न्यू बीपी फाइंड करो व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%. वेरी सिंपल. अब देखो आपके पूरे सम में यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स दिया हुआ है ना 20,000. कोई और Yes, सेल्स ma'am. नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे यही मेरी सेल्स है, नेचुरल मेरी नॉर्मल सेल्स 20,000. तो देखो इधर, व्हेन सेल्स रिड्यूसेस बाय 20%. अच्छा, व्हेन सेल्स रिड्यूसेस बाय 20%, तो आपकी सेल्स हैं कितनी? 20,000. 20,000 का 20% कितना होता है? 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000. 4,000 को आप रिड्यूस करोगे. रिड्यूस का मतलब होता है माइनस करना. सो जब आप 20,000 में से 4,000 को रिड्यूस करोगे तो आपको न्यू सेल्स मिलेगी. यस और नो? यस मैम. तो आपकी न्यू सेल्स कितनी होगी? 16,000. वेरी गुड.
So this will be my answer, 16,000 rupees new sales. Sorry, 16,000. Now, I don't have contribution. But I can easily calculate contribution. How? देखो मेरी बात सुनो. यहाँ पे आपके पास पीवी रेशियो था 400% और सेल्स था 20,000 पुराना सेल्स. सो ओल्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम? ये देखो, ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना था? सेल्स इनटू पीवी रेशियो. तो ओल्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? आपका सेल्स कितना था? 20,000 पुराना सेल्स इनटू पुराना पीवी रेशियो कितना था? 400%. तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 80,000. यस, 80,000. उन्होंने पूछा है बीपी व्हेन सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस्ड बाय, यस, रिड्यूस्ड बाय 20,000. नाउ सी, अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी मिल गया. ये देखो, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. और ये हमारा क्या है? न्यू सेल्स. सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने के लिए बोला था ना, सेल्स रिड्यूस करने के लिए बोला था ना. तो अभी हमारा न्यू पीवी रेशियो क्या आएगा? अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया तो न्यू पीवी रेशियो कितना आएगा? लेट्स चेक. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. बताओ, अभी अभी मैंने कंट्रीब्यूशन कितना निकाला? 80,000. 80,000 डिवाइडेड बाय न्यू सेल्स. न्यू पीवी रेशियो निकालने तो न्यू सेल्स लेना पड़ेगा. न्यू सेल्स कितना है आपका? 16,000 इनटू 100. तो आपका न्यू पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 500. 500. वेरी गुड, 500%. क्योंकि हमने इनटू 100 किया ना, तो 4, जैसे पहले 4 था तो अब 500 आएगा. ठीक है. अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या चाहिए था? व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%, न्यू बीईपी निकालना है. तो न्यू बीईपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फर्क क्या होगा? अब हम जो पीवी रेशियो लेंगे वो न्यू वाला लेंगे. म्यूट एवरीबॉडी. महेंद्र म्यूट करो. थैंक यू. चलो अभी देखो, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा ना. तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? देखो क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 2,000. यस, 40,000. तो अभी भी 40,000 ही होगा. डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कौन सा लेना है? जब हमने न्यू सेलिंग प्राइस निकाली थी तो पीवी रेशियो में हमने न्यू सेलिंग प्राइस कंसिडर किया था आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20%. तो मुझे बताओ, आफ्टर रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 20% तो न्यू पीवी रेशियो कितना आया था? 500% आया. वेरी गुड. तो अभी हमारा न्यू बीईपी कितना हो जाएगा? 8,000. 8,000. हमारा पुराना बीईपी कितना था? फर्स्ट जब मैंने दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया हुआ था बीईपी. कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? देखो, जब सेल्स 20,000 थी तो बीईपी कितना था? क्वेश्चन में देखो ना, टेबल में अंदर बीईपी दिया हुआ है. 10,000. हाँ. और अगर हमने सेल्स को 20,000 को 20% से रिड्यूस किया, मतलब न्यू सेल 16,000 निकाला, तो बीईपी कितना हो जाएगा? 8,000. 20,000 के सेल्स पे बीईपी था 10,000, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. और अगर मैंने 16,000 की सेल्स पे बीईपी निकाला तो निकल रहा है 8,000 रुपीज. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके. थर्ड फॉर्मूला हो गई. अब देखो फोर्थ. सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 4,000 आफ्टर रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस बाय 20%. इसका मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ. ये देखो, पहली बात तो फोर्थ फॉर्मूला लगानी है. फॉर्मूला कौन सी? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस बीपी अपॉन पीवी रेशियो. ठीक है, फॉर्मूला तो आप समझ गए. अभी उससे क्या बोला है? रिक्वायर्ड सेल्स निकालो. अगर डिजायर्ड प्रॉफिट है 4,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, 40,000. 40,000 प्लस 4,000
डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास तो दो पीवी रेशियो है, एक 400% है, एक 500% है, तो हम कौन सा वाला लें? कोई बताएगा कौन सा वाला लेना है? हम न्यू वाला लेंगे ना, क्योंकि उसमें बोला है 20% रिड्यूस वाला लेंगे। एग्जैक्टली उससे पीछे बताया है कौन सा वाला लेना है पीवी रेशियो। जब हमने सेलिंग प्राइस रिड्यूस की थी 20% से, तो सेलिंग प्राइस क्या, पीवी रेशियो क्या आया था? 500%। तो वो ही लेना है, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर कंसिडरिंग द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 20%। सो 40,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा? 44,000 होल डिवाइडेड बाय 500%। सो आपका फाइनल आंसर बोलो रिक्वायर्ड सेल्स का। 8,800। रुपीस 8,800। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? एनी डाउट? Come on, tell me, any doubt? No ma'am. Okay. Do it, I'm waiting for you. Do it. मैम Yes, tell me. एग्जाम ऑनलाइन है ऑफलाइन है? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? इंटरनल एग्जाम की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। नहीं, एक्सटर्नल के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वैसे न्यूज़ में तो आया है कि ऑफिशियली, मतलब अभी तक तो पता है, न्यूज़ में इतना ही आया है कि 99% चांसेस हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पर अभी कुछ बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं है। वो अभी जैसा यूनिवर्सिटी बोलेगा वैसे करेंगे। ठीक है? पास हो जाए। हम्म, हो जाओगे पास, डोंट वरी, अच्छे से। ठीक है। मैम हाँ जी, एक डाउट था। हाँ जी। मैम इंटरनल्स कैसे होंगे हमारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन, की आप? वो तो नहीं मैम नहीं। बताएंगे ना बेटा, सेल्वी मैम बताएंगे ना। वो हमको सेल्वी मैम इन्फॉर्म करने वाले हैं कि कैसे इंटरनल्स लेने हैं। और मेरा होगा तो मैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देने वाली हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। और अगर मैम ने बोला एमसीक्यूज में लेना है तो गूगल फॉर्म के जरिए होगा। ओके मैम। हाँ, वो एमसीक्यू सेल्वी बेस्ट है। मैम से आप पूछिए, वो बताएंगे आपको। इनफैक्ट वो हमको इन्फॉर्म करने वाले हैं, आई मीन मे बी टुडे, लेटेस्ट बाय टुमारो। सो वो हमको बताने वाले हैं। सो वेट फॉर दैट, और यू कैन आस्क मैडम डायरेक्टली। ठीक है? अगर ओके मैम। असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स के जरिए होगा तो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देने, ये 100% श्योर है मेरे सब्जेक्ट का, अगर वैसा होना है तो। और अगर एमसीक्यूज में होना है तो सबको ही एमसीक्यूज ही लेने पड़ेंगे। ठीक है? तो वो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय मैम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। चलो अभी अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं वेरी क्विकली। By the way, can you count and tell me how many questions are over, including homework questions? होमवर्क क्वेश्चंस को काउंट करके बताइएगा, ठीक है ना? मीनवाइल मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ, आप मुझे बताइए कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं। Thirteen question. 13, ओके, गुड नंबर, वाओ, ग्रेट। चलो कोई बात नहीं, अभी ये वाला करते हैं 27 सम। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, विजिबल है क्वेश्चन? ठीक से विजिबल है, अच्छे से, क्लियरली? Yes ma'am. ठीक है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इन अमाउंट ऑफ सेल्स, मतलब अमाउंट बोला तो रुपीस में, ठीक है?
इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीस, तो मतलब वही वो बोल रहा है कि रुपीस में कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट को, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर ईयर। डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है और बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में चाहिए उनको, यूनिट्स में। और इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 2 वेरिएबल कॉस्ट है और 2 फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं? 11 पर, वेरिएबल कॉस्ट 11 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का, और वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट विद सेलिंग कॉस्ट का। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 5,40,000। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं? 2,52,000। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। दिस इज सम नंबर 27th ना। Okay, let me start with a fresh page. Okay. Now, what is first point asked? This is BEP. Sorry, BEP in rupees. BEP in rupees. Okay. So, what is the formula for rupees? Fixed cost divided by PV ratio. अभी आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है? हाँ है। कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है सम में? देखो तो आपके पास सम में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं? चलो कम ऑन, कितनी है? 2 3 4 2 2 फिक्स्ड कॉस्ट्स आर देयर, सो वी नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम। ऐड एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल? 5,40,000 plus 2,52,000, so this is 5 lakh 7,50,000. 5,40,000 plus 2,52,000. Why am I writing this numerator as 5,40,000 plus 2,52,000? So that in future, if you refer the questions and answers, you do not get confused with the amount of the fixed cost. Now, after addition, कितना आएगा वो आप मुझे बताना। पहले पीवी रेशियो बताओ। 7 lakh. हाँ रुको, पहले मुझे पीवी रेशियो बताओ। दिया हुआ है कि हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, दिया हुआ है कि खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट, तो लीव लाइंस। We have to calculate. हाँ, तो 4-5 लाइंस छोड़ के स्टार मार्क डालकर पीवी रेशियो निकालेंगे। जहाँ पे स्टार मार्क डाला मतलब समझो वो पूछा नहीं है, हमने उसको एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेट किया है, क्योंकि मुझे ऊपर वाली फॉर्मूला के लिए चाहिए। तो फॉर्मूला होती है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन की जगह पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो है ना। आपने Yes, समझा? आपको याद है मैंने कंट्रीब्यूशन की 2-3 फॉर्मूला सिखाई थी? yes, ma'am. सॉरी, पीवी रेशियो की। तो पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो होगा ना। हाँ है ना, क्वेश्चन में देखो सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो इजीली मुझे ये फॉर्मूला से पीवी रेशियो निकल जाएगा। चलो देखो, मुझे बताओ सेल्स कितना है? पहले न्यूमरेटर देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका न्यूमरेटर है। तो सेल्स कितना है? 20 पर यूनिट। ठीक है, तो आप भी लिखो 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 11 एंड 3, 2 है वेरिएबल कॉस्ट। 11 प्लस 3, 2 वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को प्लस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? बोलो 14. 14। 14. अच्छा, डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब 20 इंटू 100। ये आपका वो वैल्यूज पुट हो गए, सारे फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करने थे वो हो गए। अभी 20 माइनस 14 कितना होता है? 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। So 6 divided by 20 into 100 is how much? 30. Sorry, 30. 30. 30. 30 परसेंटेज। अब मिल गया आपको पीवी रेशियो। तो अब आप ऊपर जहाँ पे आपने लाइंस छोड़ी थी बीपी इन रुपीस कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पे डाल दो 30% डिनोमिनेटर में। तो अब आप मुझे बताओ 5,40,000 प्लस 2,52,000, ये जो 2 फिक्स्ड कॉस्ट थी उसका टोटल कितना है? 7,92,000. 7,92,000 divided by 30%. So your final answer for 2 BEP in lakhs. rupees? No, 26 lakh 40,000. 40,000. 6 lakhs rupees, 26 lakhs। क्या था? 26 lakhs के पीछे क्या था?
40,000 40 40 की 14? 40. 40. तो ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब बीईपी का। फर्स्ट देखो कितना इजी है, कुछ बनाने की, मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मैम आपने सुनो ना। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम देखो ना, जो आपने पीवी रेशियो निकाला इसमें आप 30 आया तो आपने इसको परसेंट ले लिया, वहां पर 4 आया तो आपने 400% क्यों ओह लिया? माय गॉड, तभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंफ्यूज मत हो तुम लोग। देखो मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, जैसे आपको डाउट रहे ही नहीं कभी। ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये 4, अच्छा सीधा मैंने 4 लिखा है। ये कैसे अप्लाई किया था वो बताओ मुझे। फॉर्मूला लगाई थी हमने, बीपी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला लगाई थी आपने, हाँ या नहीं? यस मैम। अभी इसमें बीपी दिया हुआ था, कितना था बीपी? 10,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट था 40,000, डिवाइडेड बाय पीवी नहीं था तो डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क था, मतलब पीवी रेशियो। ठीक है, आपने सेम लिखा होगा पीवी रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर इक्वल्स टू के इधर जाएगा और इनटू 10,000 अगर पीवी रेशियो के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10,000 को यहाँ लेके आओगे, पीवी रेशियो को यहाँ लेके जाओगे तो डिवाइड 10,000 हो जाएगा ना, प्लेस Yes, ma'am. चेंज करनी है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ पे इंटू 100 किया है मैंने, हाँ या नहीं बोलो? इंटू नहीं। 100 किया है तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000 तो आंसर तो 4 आएगा ना बच्चा। अगर आप इंटू 100 करोगे, ये देखो ये देखो, एक मिनट रुको, पीवी रेशियो में तो आपको इंटू 100 करना ही है ना, इंटू 100। हाँ। अभी देखो 40,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 तो कितना आएगा? 400%। अब जो मैंने हाईलाइट किया ना वो आएगा, जो मैंने अच्छा मैम, हाईलाइट समझा। किया है वो आएगा। अभी क्लियर हुआ? यस मैम, समझा। हाँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई, बस लिखा नहीं था मैंने, अभी लिख के बताया। पहले मैंने आपको क्या समझाया, फॉर्मूला के हिसाब से इंटू 100 नहीं है, तो पीवी रेशियो आएगा 4। 4 मतलब क्या? पीवी रेशियो, ये वाला जो पीवी रेशियो होता है वो तो परसेंटेज में होता है। अब उसको 4 को मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। यस। तो 4 इंटू 100 मीन्स 400%। समझा ठीक मैम, है, अभी समझा। समझा, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी आगे यस मैम। बढ़ो, अभी वाले सम में आ जाओ। अभी वाले सम में 30% आ गया पीवी रेशियो, उसको आप ऊपर बीपी की फॉर्मूला में लेकर जाओगे और बीपी का आंसर निकाल दोगे। अभी लास्ट फॉर्मूला क्या पूछिए, देखो, म्यूट आदिति बेटा म्यूट कर देना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, number of units that must be sold to earn a profit of 1,68,000 per year। अभी उन्होंने क्या बोला है, डिजायर्ड, अदिति बेटा म्यूट, देखो डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 1,68,000, ये दिया हुआ है, और उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब फॉर्मूला तो रिक्वायर्ड सेल्स की लगानी है, पर कौन सी वाली? यूनिट्स वाली। यूनिट वाली। यस, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आया समझ में कौन सी फॉर्मूला लगानी है? यस मैम। बोलो फिक्स्ड Yes. कॉस्ट कितना है? अभी अभी हमने फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल निकाला था, टोटल 7,92,000। 7,92,000. वेरी गुड, मतलब दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके लिखना है, प्लीज ध्यान से सुनिए। अभी दो फिक्स्ड कॉस्ट है, 2 हो चाहे 10 हो चाहे 1 हो, आपको लिखना है टोटल। 1 होगा तो वही लिखना है, 10 होंगे तो सबको प्लस करके लिखना है। तो आपको चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 7,92,000 आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड सॉरी प्लस डीपी। डीपी मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना है डीपी? 1,68,000। 1,68,000. वेरी गुड वेरी गुड, 1,68,000, वेरी गुड। ये ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये दिया हुआ तो नहीं है, निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ये देखो स्टार मार्क डालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बोलो कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है? कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो अभी दोनों के पर यूनिट को जब हम माइनस करेंगे ना तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट चाहिए ना, दोनों की कंट्रीब्यूशन, दोनों के पर यूनिट को माइनस करो तो मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों मतलब सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स 20 है माइनस पर यूनिट हाँ, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2 है। 14। 14। 2 है मतलब 11 और 3, 11 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 14, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू ₹14। अब इसी 14 को आपको ऊपर फॉर्मूला में लेकर आना है और डिनोमिनेटर में एंड डालना है। 6 आएगा ना, 20 माइनस 14 6 सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया, ये आपका 6 हो जाएगा। 20 माइनस 14 इज 6, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 6। ठीक है, तो मैम अभी रुपीज बताओ। 6 नहीं आएगा, पर यूनिट आएगा ना। हाँ ना, पर यूनिट को ₹6 पर यूनिट